Hello students, welcome back. Let's complete today the chapter named The Address, written by Marga Minko. In the previous video, we had ended up to a point where the mother of the narrator had asked her to always remember an address, and what that address is 46 Marconi Street. चलिए उससे आगे पढ़ते हैं फिर क्या होता है. In the very next paragraph, look at the lines. She is saying that initially I was not at all interested in getting those belongings. So, although I knew the address, I never thought of going back there because I doesn't want to get confronted by those things which will remind of the pre-war situations, and that would be very much difficult for me to gulp or to digest, because in the war she had lost various things, even her family members. क्या कहती है इस पैराग्राफ में कि एड्रेस तो मुझे पता था, याद था, माँ ने जो बताया था, लेकिन कई सालों तक मैं उस पते पर जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सारी चीजें मुझे किस बात की याद दिलाती, प्री वार कंडीशन की. उन चीजों को देख के मुझे मेरी पुरानी यादें ताजा होती और वो मुझे दुखी करती. कहती है कुछ सामान जो मेरे पास था उसको भी मैंने कपबोर्ड में बंद करके रखा था, मैं उनको देखना नहीं चाहती थी. वही इमोशन कि वो मुझे मेरी माँ की और मेरे प्री वार जो मेरे साथ एक अच्छी दुनिया थी और उसके बाद जो ये बदलाव आया है उसकी याद दिलाएगा. दैट्स व्हाई शी इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड initially to go back there and to get her belongings. Then she herself is saying that all of a sudden she developed likeness. She felt curious enough to get those things back and decided to go back a second time to Mrs. Darling's house. And she went also, she goes there, and who is opening the door this time? A 15-year-old girl. When she asks her, where is your mother? She is saying that she is doing some arrangements, doing some household chores. Still, the narrator says that I will wait, means I want to meet her and I want to take back my things this time. This is her initial, this is her inner decision. When she said finally that I would wait, the girl took her inside and crossing a passage, they entered into the house. There the lines are, won't you sit down, asked the girl. I held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped horrified. I was in a room I knew and I did not know. Mark the lines. She is saying I knew the room and I did not. Means all the things, the wall hangings and the belongings or those things available in the room are almost there. So the place, the room was a different one, but the things that were placed inside the room were all theirs. So she is saying here, I was at a place which I knew and I did not. मतलब सिर्फ रूम नया था, ये जगह नहीं थी, लेकिन कमरे में लगभग सामान बहुत ही बैड टेस्ट में सारे के सारे इन्हीं लोग के पड़े हुए थे जो कभी मिसेस डॉर्लिंग इनके घर से उठा के लाई थी. और इसीलिए यहाँ ये लाइन इस्तेमाल हुआ है. आपको इससे क्वेश्चन भी मिल सकता है कि एक ऐसी जगह पर मैं थी जिससे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी. In the next lines, I don't know, but I scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. देखो how emotional this scene is. कहती है जब मैंने टेबल क्लॉथ को देखा, उस पर हाथ रगड़ के एक बार वो अपने आप को कंफर्म करना चाहती है. हाथ रगड़ते ही वो गर्म हो गया और बिल्कुल उनको याद था कि एक जगह ये जला हुआ होगा और वो आज तक रिपेयर्ड नहीं था. जैसा था उस समय जब उनके घर में वो चीज हुआ करता था, आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा था. और इस बीच उस लड़की ने इसके लिए चाय बना दी थी और कह रही है कि माँ भी थोड़ी देर में आती ही होगी. देखिए वो कैसे अपने एक एक चीजों को देखेगी और कितना पैथेटिक फील करती है. देखो, I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was
gold border on the lid, I remembered she opened a box and took some spoons out. Even on the dining table, जब ये चाय तैयार हो रही है, फिर इसको अपना पास्ट रिमाइंड हो जा रहा है. ये कप, ये स्पून्स, सब कुछ बिल्कुल किसका है? इन्हीं लोगों का. और थोड़ा सा उस लड़की के बारे में भी बता रही है कि जैसे ही वो टी प्रिपेयर करने के लिए पीछे मुड़ी, आई नोटिस्ड शी हैड द सेम ब्रॉड बैक एज हर मदर हैड. याद है ना, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि फ्लीटिंगली वो उसको देखी थी एक दो बार, तो सिर्फ देख पाई थी कि उनका कंधा, उनका पीठ काफी चौड़ा था. एंड यू विल फील वेरी आयरनिकल हियर दैट द गर्ल हु वाज गिविंग हर टी, शी इज सेइंग दैट ऑल दीज थिंग्स आर एंटिक पीसेस. मतलब उन्हीं के सामान में, उस बच्ची को शायद पता नहीं है कि ये सारा सामान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसी लड़की का जो इसे आज लेने आई है, उसी को बता रही है कि ये सारे एंटिक पीसेस हैं और हम लोग हमेशा यही यूज करते हैं. यानी जो भी सिल्वर यूटेंसिल्स हैं, फोक है, स्पून्स है, तो वो उस पर अपना प्राउड फील करते हुए बोल रही है कि हम लोग ये सब हमेशा ही इस्तेमाल करते हैं. मतलब वी आर सो वेल टू डू दैट वी ऑलवेज यूज सिल्वर स्पून्स एक्सेट्रा, without knowing that all those things belonged to the girl who had come there and was sitting before her. And the more they were conversing, the more she was getting the details of the things they had brought there. और अब उसको बताना भी नहीं पड़ रहा है, ये खुद आगे आगे पूछ रही है कि आप क्या क्या इस्तेमाल करती, वो खुद बता रही है. लुक एट द लाइन हियर. वो खुद कहती हैं, I bet you don't know it either. I looked intently at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look. It is in here. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. It's very, very, very pathetic. उसको वो पूरे घर का सेटअप पूरी तरह से अपने घर की याद दिला रहा है. हर कुछ, एक एक सामान जो भी मिसेस डार्लिंग उठा के लाई थी, वो इस इम्प्रेशन में कि शायद ये लोग कभी वापस नहीं आएंगे, वो सारा का सारा इस्तेमाल कर रही थी. एंड परहैप्स शी फेल्ट दैट दे हैड डाइड ड्यूरिंग द वॉर एंड वुड नेवर कम बैक, सो दे वे यूजिंग ऑल दोज थिंग्स. और अचानक ये सारा कुछ देख के नैरेटर अपसेट हो जाती हैं. वो बहुत बैड फील करती हैं और कहती हैं मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे वापस जाना है. वो लड़की उसको ड्रॉअर खोल के वो दिखाने जा रही है कि देखो हम लोग कौन सा फोक और स्पून यूज करते हैं. और इधर नैरेटर वेरी मच प्रिपेयर्ड दैट शी वुड नॉट लुक एट दोज थिंग्स बिकॉज शी इज श्योर, 100% श्योर दैट all those silver spoons and forks were there and she doesn't want to see and at once decided to go back. वो उधर ड्रॉअर खोल रही है, वो कह रही है नहीं मुझे वापस जाना है, मुझे ट्रेन पकड़ने में लेट हो जाएगी. और इतनी वो वहां से निकल जाती है. और जब वो पूछती भी है वो बच्ची कि क्या आप मेरी माँ से मिलना नहीं चाहती है, तो वो कहती नहीं मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है. एंड इवन वाइल going back, she stops at the corner and looks back at the same address. Perhaps that's why this chapter has been named the address. You can do title justification here. कि इस chapter का नाम the address ही क्यों पड़ा? क्योंकि the address is the dominant point throughout the story. हर बार ये address ही dominate कर रहा है कि जहाँ से उसके emotions begin हुए थे और शायद यहाँ end भी कर रहे हैं. And she goes back empty-handed. Look at the lines, what she tells us. I would not go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. And she is now giving you justification. Means we readers are getting the justification why she came back empty-handed. कि जिन सामानों से आपका अटैचमेंट रहता है, आप उसको फिर से क्यों पाना चाहते हैं, फिर से उसी अच्छी मेमोरीज को पाने के लिए. बट यहाँ क्या हो रहा है, उन चीजों को बहुत ही बैड टेस्ट में, मीन्स द पीपल हु वर यूजिंग देम आर ट्रीटिंग देम सो बैडली, हैव केप्ट देम सो बैडली दैट दे हैड लॉस्ट देयर इमोशंस अटैच्ड. कि उनको लगता है नैरेटर को कि उन चीजों से अब मुझे वो इमोशंस नहीं मिल पाएगा जिसके लिए मैं उसको ले जाना चाहती हूँ, जिस वजह से मैं उसको अपने साथ रखना चाहती हूँ. एंड द लास्ट टू लाइन्स,
and what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. Second justification, one, that the things have lost their entity, एंड द सेकेंड वन कि वैसे भी तो मैं एक छोटे से रेंटेड रूम में रहती हूँ जिसमें अभी भी वो जो ब्लैक पेपर लगा है वो अभी भी वार के रेजिडुअल्स को दिखा रहा है कि अभी भी मेमोरी उसकी है, पूरी तरह से वार सिचुएशंस ओवर नहीं हुए हैं. मतलब अपने आप को कंसोल करना, कितना सामान ले जाके भी हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा तो एक छोटा सा कमरा है, उसमें हम सारे चीजों को नहीं रख पाएंगे. आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, ऑल ऑफ द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द इजिएस्ट. और उसी समय प्रण लेती है, रिजोल्यूशन लेती है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल फॉरगेट दिस एड्रेस. बहुत सी चीजें भूलनी है. ये यहाँ पर फिर से एक थोड़ा सा हिंट है, वो क्या भूलना चाहती हैं, उन गहरे जख्मों को जो वार ने उनको दिया है, अपने पुरानी गहरी चोट वाली यादों को, जिसकी वजह से वो आज इस सर्कमस्टांस में है कि अपने सामान को लेने आती भी हैं और फिर बिना लिए जा रही हैं. तो कहती है जो भी चीजें मुझे भूलनी है उनमें से सबसे ज्यादा आसान होगा कि मैं हमेशा के लिए इस एड्रेस को भूल जाऊं. थैंक यू.